الكتاب وأقبل علي
أذنت لك ودخل علي تحت الكساء صلوات. ثم أعطيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدري أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يوم بنتي ويوم بدعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء صلوات. ولما تضم جميعا تحت الكساء قضى بي رسول الله ضرب الكساء وعظم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لحمي دمهم دمي يظلمني ما يظلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن ناداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا ربي أدلني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صالحا. فقال الله نعم قد أذنت لك وحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الذي الآن يبلغ بالسلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقول رسول الله وعليك السلام يا عمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنه يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما ليحسن هذا تحت الكسوة من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله قلنا قال شيعتنا والرب الكعبة. وقال علي عليه السلام إذا والله قلنا وقال شيعتنا. وقال علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأمون الله وفرج الله أمره ولا مأمون الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام أيضا والله قلنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قالوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. अपने और इस नंबर के लिए माने सबके लिए और अरबी के तमाम मरबूबीन के लिए और उसी तरह सैयद अजमल हसन जैदी सैयद महबूब हसन हुसैन जैदी और इस हमले के तमाम मरबूबीन के लिए एक बार सुलेता हूँ और तीन बार सरकार दावत के लिए
नकीर
वो
रफ्तार कैद से छूटे इमाम जी के अज़ादार कैद से छूटे असीरो मुज़्तरो नाचार कैद से छूटे जनाब आबिद बीमार कैद से छूटे का इज़्न जो पाया तुझे को चैन मिला हुसैन तो न मिले पर सरे हुसैन मिला हुसैन तो न मिले पर सरे हुसैन मिला मदाई के शाहे आया पछाड़ खाई सर में रोज
किया पंचतन पार का लो अपने तकदीर किया पंचतन पार का लो आग से पानी से अपने तकदीर किया पंचतन पार का लो आग से पानी से मिट्टी से हवा से नाज़िल इस वास्ते तकदीर की आयत ना हुई नाज़िल इस वास्ते तकदीर की आयत ना हुई भाई कोई मिसदार न था अहले के साथ पहले मिसदार न था अहले के साथ पहले तूने मेराज अता की है वफा तो राज़ी तूने मेराज अता की है वफा तो राज़ी नाम मछलियाँ जैसे तड़पती है बिना पानी के मछलियाँ जैसे तड़पती है बिना पानी के अरे हम तड़पते पहुंचा अरे
होंगे असहाब भी ताज़ीम के काबिल, मरतबे शेर समाज फरमाइए मसाइल का शेर, इसमें पूरा वसीया है, पूरा वसीया शामिल है। शेर खैमों की तरफ बढ़ते लाइनों से कहा, शेर खैमों की तरफ बढ़ते लाइनों से कहा, सर उतारो मेरा ज़मीना से पहले, दुनिया फिर भी सकीना के लबों पर थी सकीना के लबों पर थी काश आ जाए मेरे बाबा कदा से पहले। सलाम जनाब सोहेल शाह साहब का मौका पड़ रहा हूँ। हम उसी शाम की गलियों के गदागर हैं सोहैल, हम उसी शाम की गलियों के गदागर हैं सोहैल, भीख देता सदा से पहले शबीर कदा से मेरे बाबा
وأقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى ये मजलिस एक मोमिन के दर्जात की बुलंदी के लिए बरपा है और यकीनन हम आने वाली कोई हरफ तसल्ली नहीं रखते अपने पास। कामयाबी के लिए बजूज से ये मशवरा दें कि अपने सागरे गम को हुसैन के दरियाए गम में डालें और इसी को इस्तिलाह में ईसाई सवाब, इसी को इस्तिलाह में ईसाई सवाब। यकीनन जिंदगी इम्तहान से बना है और कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जो हालत में बगैर इम्तहान मुख्तसर है। सांस की आमद और रफ्त में एक इम्तहान है। इंसान के सबूत हरकत में एक इम्तहान है। इंसान की खामोशियों रम्ज में एक इम्तहान है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिंदगी का जो इम्तहान से बड़ी है, लेकिन मुख्तसर से बात ये मुकाम सबके पास महफूज है। सूरह बकरा खालिक ने ऐलान किया कि हमने बगैर इम्तहान किसी को नहीं छोड़ा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हारा रब तुम्हारा इम्तहान देता है। मिनल खौफ, खौफ में से कुछ, वलजू भूख में से कुछ, वनक्सिन मिनल अम्वाल तुम्हारे माल में से कुछ, वलनफुस तुम्हारी जान में से कुछ, वस्समरात तुम्हारे औलाद में से कुछ। शायद तजबी तो देखिए, उसने इंसान का इम्तहान कुल्ली नहीं लिया, उसने इंसान का इम्तहान जुज़वी लिया। अब जुज़वी मनाज़िल इम्तहानात को जो राज़ी का रज़ा तय कर देता तो अपनी हयात को दाखिले हिसारे सब्र कर देता है। और हयात जब हिसारे सब्र की मकी हो जाए, हयात जब हिसारे सब्र में कयाम पदीर हो जाए, तो दो अम्र मैंने कहा हमेशा महफूज रहना चाहिए। ये आईने कुरान में साफे उसे कहते हैं कि जो बाखबर हो साहिब इख्तियार, अब उसे ये हक हासिल है, अब उसको ये इस्तेहकाक मिल गया कि वो अपनी ज़बान पर इस कलमे को जारी करे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये कलमा उसके नफ्स को मौत नहीं देता, हयात अमौत देता। ये कलमा उसके नफ्स को मौत नहीं देता, हयात अबदी दे देता। मेरे अजीज, मजलिसे आदाए कलमा के लिए नहीं, मजलिसे रम्ज़ कलमा से कल्ब को शनासा कर देता। कलमा तो
तो सब पढ़ते हैं, कलमा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मजलिस रम्ज़ कलमा से कल्ब को शनासा नहीं हो। अगर ये मजलिसें न हो तो हयात दाए लफ्ज़ी पे दम तोड़ देगी। अगर ये मजलिसें न हो तो हयात दाए लफ्ज़ी में दम तोड़ देगी। ये मजलिसें हयात को दाए लफ्ज़ी से निकाल कर दाए मानवी में क़याम देती है, दाए मानवी में क़याम देती है। कलमा तो 60 हिजरी में भी सब पढ़ रहे थे, कलमा तो 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी को सब पढ़ रहे थे, लेकिन करबला इसलिए मुंतखब की कि तासुब क़यामत एक राव मुअय्यन हो जाए कि जब करबला की फुरात से दामन बंधे तो क़याम दायरे लफ्ज़ी से निकलकर दायरे मानवी में आकर क़याम नसीब हो जाए। अगर हयात दायरे लफ्ज़ी के अंदर रही तो दम तोड़ देगी, और अगर दायरे मानवी में क़याम नसीब हुई तो हयात से हयात को मुसलसल कर दी, हयात को हयात से मुसलसल कर दी। कलमा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी इस कलमे को मुख्तस कर छोड़ा खबर मौत से, लेकिन याद रखें इस मुख्तसर से वक्त में इस मसाले में कि जिंदगी जब मंजिल इम्तिहान में आए, जिंदगी जब अपने आप को मंजिल इम्तिहान में पाए तो इस कलमे को अपनी ज़बान पे जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कल्ब में यकीन रहे कि अब मेरा खिंचता हुआ सांस और उठता हुआ कदम मौत की जानिब नहीं, जिंदगी की जानिब, मौत की जानिब नहीं, जिंदगी की जानिब पर। इस गुफ्तगू को तुलानी नहीं करता, लेकिन तफसील इम्तिहानात तो आपके पेश है। पहला इम्तिहान खौफ, दूसरा इम्तिहान भूख, तीसरा इम्तिहान माल, चौथा इम्तिहान जान, पांचवा इम्तिहान औलाद। मेरे अजीज, यूं अगर पहले इम्तिहान की मंजिल को इंसान सर करे तो दूसरे इम्तिहान की मंजिल के अंदर कदम होता है, दूसरे इम्तिहान की मंजिल को तय करें तो तीसरी मंजिल इम्तिहान में कदम रहता है। यानी जूं जूं मनाजिल इम्तिहान तय करता चला जाएगा उसके मदारिज हयात भी बुलंद होते चले जाएंगे, उसके मदारिज हयात भी बुलंद होते चले जाएंगे। पहला इम्तिहान खौफ, पहला इम्तिहान खौफ। दुनिया हिसारे खौफ में कैद है, दुनिया हिसारे खौफ में कैद है। कल भी हिसारे खौफ में कैद थी और आज भी हिसारे खौफ में कैद है। अब अगर कोई पूछे कि ये बार बार जिसे क्यों है तो उसे समझाए कि ये राम करती है कि जिंदगी हिसारे खौफ से निकल कर कैसे दाखिल हिसारे अमल हो, जिंदगी कैसे हिसारे खौफ को गिरा दाखिल हिसारे अमल हो। पहला इम्तिहान खौफ, जब तक जिंदगी हिसारे खौफ में कैद है ईमान रुखसत, ईमान रुखसत और हिसारे खौफ को गिरा एक सांस खींच ली, ईमान सलामत, ईमान सलामत। देखिए खंदक में सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, सरगोशी चल रही थी कि हमसे भी ये कहा गया था अल्लाह की मदद आएगी, और यहां
यहाँ तो पहाड़ से लश्कर का लश्कर उतर रहा, यहाँ तो पहाड़ से लश्कर का लश्कर उतर रहा। तफसील नहीं है, तफसील नहीं है। सूरह अहज़ाब को जाकर एक मर्तबा मुताला कर, हमसे तो ये कहा गया था कि अल्लाह की मदद आई और यहाँ पहाड़ से लश्कर का लश्कर उतर रहा। और ऐसे में एक मर्द खंदक को फांद कर, खंदक को फांद कर सांसें रोक रहे। उसने अजब गुस्ताखी की कि साथ खातम की जबान पर सख्त तरीन कलमा जारी है। कोई है जो इस कल्ब की जबान को पता करे। एक खड़ा हुआ, एक खड़ा हुआ, रसूल ने कहा बैठ जाओ। और ऐसे में फिर कहा कि है कोई तो सरगोशी चाहिए कि वही तो है, कि वही तो है जो नाके के बच्चे को ढाल बना के लड़ता। और इस सरगोशी में फिर वही खड़ा हुआ जो अव्वल मंजिल पर खड़ा। इसके मुकाबले के लिए तैयार और फिर नाते खातम ने कहा कोई है जो चाचा बार बार मौका दिया कि कोई शिकवा न करे कि हसरत दुली न लगी। फिर वही खड़ा हुआ जो अव्वल मंजिल में खड़ा था। खत्ती मर्तबत ने कहा अली मेरे करीब आओ, अली को करीब बुलाया, तब खुदा के रिसालत से अली को आरास्ता जलाले मुर्तज़वी को जमाले मुस्तफ़वी में बदला। और कहा अली ने खंदक से कदम बाहर बनाया। रसूल करीम की जबान में क्या चल रहा था? लेकिन अल्लाह के नियामत की आवाज को सुनो।
ईमान सलामत है, ईमान सलामत है। देखो साहिबी सभी कलमा पढ़ रहे हैं, सभी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सभी कुरान तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो एक कदम मदीने से बाहर निकला, वो एक कदम मदीने से बाहर निकला, उस उठते हुए कदम में जिंदगी को हिसारे मौत से निकाला और बाहरी हिसारे अमल कर दिया और सीनाए तारीफ पर ये मुसलमान रकम कर दिया कि हुसैन ने कलमा पढ़ के कदम नहीं उठाया, हुसैन ने आयत पढ़ के कदम नहीं उठाया, हुसैन ने एक लफ्ज़ में ला कह के कदम उठाया, हुसैन ने एक लफ्ज़ में ला कह के कदम उठाया। भाई सवाल पाया था, हुसैन ने ला की देर से सारे पाया को अलग कर दिया। सवाल पाया था, हुसैन ने ला की देर से सारे पाया को अलग कर दिया, जिंदगी को हिसारे मौत से निकाला और बाकी हिसारे अमल कर दिया। तो वो दिन और आज का दिन हमने एक नाम और कहना सीखा और वो है हुसैन, वो है हुसैन। और अजीज़ाने गिरामी अफ़गानी का बड़ा हुनर देख लीजिए, किसी हुक्मरान ने किसी अहद में ये ज़रूरत नहीं की, किसी हाकिम ने किसी मयूजियत के ठहरदा ने ये ज़रूरत नहीं की कि वो हमसे सवाल पाए करें, इसलिए कि वो भी समझ रहे हैं कि जो हुसैन कहना सीख ले मसला कलमा पढ़ने का नहीं, सादगी में पूरी मिल्लत कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हुम्मत ला नहीं थी, हुम्मत ला नहीं थी। एक कदम हुसैन ने निकाला, ला हुम्मत में था और तासुबे क़यामत बता दिया कि जब तक हुम्मत ला नहीं, हुक्म ला नहीं टूटेगा, जब तक हुम्मत ला नहीं, हुक्म ताऊत नहीं टूटेगा। लेकिन जिसमें ला की हुम्मत है, वो हमारा है कि हुक्म ला को तोड़ेगा, वो हमारा है कि हुक्म ताऊत को तोड़ेगा। तो 57 इस्लामी ममालिक है, आज भी हमारा मशवरा ये है कि हम कलमा नहीं पढ़ पा रहे, हम कहते हैं दो नाम कहना सीखो, या अली या हुसैन। हुसैन कहना सीख लिया तो तुम में भी हुम्मत ला आ जाएगी, और जिसमें हुम्मत ला आ जाए वो गुलाम नहीं होता, वो गुलाम नहीं होता, आजाद होता है, वो गुलाम नहीं होता, आजाद होता है। जिसमें हुम्मत ला नहीं वो गुलाम, जिसमें हुम्मत ला आ गई वो आजाद नहीं, जिसमें हुम्मत ला नहीं वो ज़मीर होता। जिसमें कुव्वत ला नहीं वो ज़मीर मुर्दा, जिसमें कुव्वत ला आ गई वो ज़मीर जिंदा। तो अब तो कहो हुसैन को, आवाज़े ज़मीर का दूसरा नाम हुसैन, आवाज़े ज़मीर का दूसरा नाम हुसैन है। जिसने हुसैन कहना सीखा उसमें कुव्वत ला आ गई, और जिसमें कुव्वत ला आई
उसने फुतैला को तोड़ा और इधर फुतैला को तोड़ा। जिंदगी अल्लाह से बुलंद हो गई, जिंदगी अल्लाह से बुलंद हो गई। बेचैनियां नहीं, अब इत्मीनान, बेचैनियां नहीं, अब इत्मीनान है। अब जिंदगी सारे फना से निकलकर ये सारे बका की मक्खी बन गई। जिंदगी सारे फना से निकलकर ये सारे बका की मक्खी बन गई। मेरे अजीज, एक रात मांगी थी हुसैन में, एक रात मांगी थी हुसैन में, वो रात आज भी बाकी है, वो रात आज भी बाकी है। लेकिन देखना ये है कि किसके लिए मोहब्बत है, किसके लिए किसके लिए मोहब्बत है, किसके लिए तौहीद। देखिए गुफ्तगू कोई तफसील नहीं है। मोहब्बत सजा में होती है, तौहीद नाम में। मोहब्बत सजा में होती है, तौहीद नाम में। एक रात हुसैन ने मांगी और तुम्हें आशूर सफेद चेहरे आशूर में मंदिर सजा करके बताया कि किसके लिए मोहब्बत बनी और किसके लिए तौहीद बनी। मेरे अजीज, अब तुम्हें आशूर एक कदम आगे बढ़ा, कलमा पढ़के नहीं, सजदा करके नहीं, हुसैन कहकर आगे बढ़ा। जिसने हुसैन कहा उसके लिए वो रात तौहीद बन गई, और जब वो रात तौहीद बनी उसमें कुव्वत अल्लाह आ गई, और जब कुव्वत अल्लाह आ गई तो उसने सरेइला को कलम कर दिया, सरेइला को कलम कर दिया। ये वक्त नहीं है। सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ा इल्म इंसान की मैं है। सबसे बड़ी या इंसान की मैं, तमाम ख्वाहिशात, तमाम हिस्सा हवा का मंदिर मैं ये नुस्खा होने रखा कर दिया कि हुसैन कैसे कदम आगे बढ़ाया, सारे मैं को कदम कर दिया, सारे मैं को कदम कर दिया। मैं नहीं, तू ही तू, मैं नहीं, तू ही तू। हयात की अल्लाह से मुझे हुई, हिसारे फना से निकल गए, हिसारे बना में आ गया। अगर जंजीरें मैंने असली रहा तो काबिल याद आए, जंजीरें मैं से रहा हो गया, लायक दरूद सलाम है। जंजीरें मैं से रहा हो गया, लायक दरूद सलाम है। सबसे बड़ा इल्म है, सबसे बड़ा इल्म है। अब देखिए वो हजरात जो शिर्क की गर्दन लगा, उनको समझाया, उनको समझाया कि शिर्क जली के ऊपर तो सब निगाह रखते हैं, शिर्क खफी पे भी तो निगाह रखते हैं। शिर्क खफी पे भी तो निगाह रखते हैं। अब पूछिए हुसैन कौन? हुसैन वो जो शिर्क जली से नहीं, शिर्क खफी से भी आजाद है, शिर्क खफी से भी आजाद कर दिया। जितने काम मैं के तहत हैं, जितने काम मैं के तहत हैं, वो शिर्क खफी के अंदर असीर रखते थे, वो शिर्क खफी के अंदर असीर रखते थे। जितने काम मैं के तहत हैं, वो शिर्क खफी के अंदर असीर रखते थे। लेकिन जब सरे मैं कलम हुआ और वही काम लिल्लाहियत के साथ हुए, तो वही काम इंसान को मुशरिक नहीं बनाते, तो वही बना देते। वही काम इंसान को मुशरिक नहीं बनाते, मुवहिद बना देते हैं। अब बताओ जो
हुसैन कहना सीख लिया, मुझे ये जान दे दोगे हुसैन खुदैया को तोड़ता, हुसैन सरे मैं को कलम करता, हुसैन फना को बका में बदलता, हुसैन मजबूर को साहिब इख्तियार बनाता, हुसैन मजबूर को साहिब इख्तियार बनाता है। 1400 साल से बार बार करबला के वरक़ उलटते हैं, शायद किसी की तारीखी हयात रोशनी में बदल जाए, शायद किसी की तारीखी हयात रोशनी में बदल जाए। करबला का वरक़ जब उलटेगा जिंदगी तारीखी से निकलकर रोशनी में आए, तारीखी से निकलकर रोशनी में आए। वो हुर नहीं रहने देगी, हुर नहीं सलाम बनाए, वो हुर नहीं रहने देगी, हुर नहीं सलाम बनाए। जब करबला के वरक़ से इर्तिबात को कायम कर देगा तो दुनिया में जिससे कुछ लेगा नहीं, देता चला जाएगा, देता चला जाएगा। मेरे अजीज, वो और है जो लेने पे आमादा है। ये है हमारी तारीख का खुलासा। वरक़ वरक़ उलट के देखो, हमने इस दुनिया में जिससे कुछ लिया नहीं, दिया ही दिया है। जिन्होंने दिया वो शर के दायरे में, जिन्होंने दिया वो खैर के दायरे में, जिन्होंने दिया वो खैर के दायरे में। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अगर दे रहा है तो शर के दायरे में, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दे रहा है तो खैर के दायरे में, खैर के दायरे में। मेरे अजीज, या अली या हुसैन कहना सीख लो, हक़ हयात छीनोगे नहीं, हक़ हयात दो, हक़ हयात छीनोगे नहीं, हक़ हयात दो है। इसलिए कि अली और हुसैन कहना सीख लोगे तो इस रम्ज को जान लोगे कि हक़ हयात छीनते नहीं, हक़ हयात देते हैं। लेकिन अगर कोई बुराई को रोकना न चाहे, अगर कोई बुराई को रोकना न चाहे तो ये बुराई के सर को कता कर देंगे, ये बुराई के सर को कता कर देंगे। मेरे अजीज, ये हमारी तारीख है। और जाके वरक़ वरक़ उलट के देखो, अहद रिसालत के अंदर 87 ग़ज़वात हैं और रिसालत के बाद अली के 3 जंगें हैं। फिर एक मारका मदाइन के मैदान में हसन था, और फिर एक मारका करबला था, फिर एक मारका करबला, करबला के बाद फिर कोई करबला था, करबला के बाद फिर कोई करबला नहीं। लेकिन इन तमाम तारीख के ऊपर निगाह रखो, हमने कभी हमला नहीं किया, हमने दिफा किया, हमने कहीं हमला नहीं किया, हमने दिफा किया है। आज भी हमने किसी पे हमला नहीं किया, आज भी हमने दिफा किया, आज भी हमने किसी पे हमला नहीं किया, आज भी हमने दिफा किया। हम तारीख को बहुत बारीक बीनी से देखने के आए हैं, बहुत बारीक बीनी से देखने के आए हैं। वो जौहर ने कहा था कि कत्ल हुसैन न सिर्फ मर्द लतीफ है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन आले रज़ा ने इस फिक्र को एक समत अता की, आले रज़ा ने इस फिक्र को एक समत अता की और ने कहा कत्ल हुसैन ना सिर्फ मर्द लतीफ, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आले रज़ा मरहूम ने कहा इस्लाम सो रूद हुआ हर बला के बाद, इस्लाम सो रूद हुआ हर बला के बाद, लेकिन वो बात फिर न हुई करबला के बाद। लेकिन वो बात फिर न हुई करबला के बाद।
कोई आए एक दिन में हुसैन ने 72 लाशें नहीं उठाया, 72 चिराग हुसैन ने शहादत के मुनव्वर करवाए, 72 चिराग हुसैन ने शहादत के मुनव्वर करवाए। हुसैन ने तस्सूर क़यामत नब्ज़ इंसान को झंझोड़ दिया कि जब तक शहादत के चिरागों से रोशनी लोगे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। हाँ, ये हबीब दिया, ये बुरैर दिया, ये शकील शाकरी दिया, ये 90 बरस का हुआ मुजाहिद सईद दिया। इस्लाम सुखरू हो, ये अली अकबर दिया, ये अली अकबर दिया। इसकी सूरत बार बार हुसैन देखते हैं, जिससे मकालमा हुसैन बार बार उसी को सबसे पहले मैदान में भेजा, उसी को सबसे पहले मैदान में भेजा। और जब उसका सलाम आया मैदान से तो हुसैन कदम जमा जमा के चले, हुसैन कदम जमा जमा के चले। पीढ़ी में जवान बेटे का लाशा उठा के चले, पीढ़ी में जवान बेटे का लाशा उठा के चले। का मालिक गवाह रहना, गवाह रहना। और फिर आवाज दी, दादा इब्राहिम जरा हुसैन की इस मंजिल सब्र तो देखिए, जरा हुसैन की इस मंजिल सब्र तो देखिए। कड़ियल जवान बेटा दिया, भांजे दिए भतीजे, भांजे दिए भतीजे दिए, बराबर का भाई, बराबर का भाई मैदान में गया। और अजीजों, जब बराबर का भाई मैदान में गया, हुसैन खैमे के दरवाजे पे आके खड़े हुए, खैमे के दरवाजे पे आके खड़े हुए। निगाह जमाए रखी अबुल फजल पर, निगाह जमाए रखी अबुल फजल पर। बहन बार बार हुसैन से मुकालमा करती है, बहन बार बार हुसैन से मुकालमा करती है। और हुसैन कहते रहे, बहन मैंने अपनी गोद में पाला है अब्बास, मैंने अपनी गोद में पाला है अब्बास। और अजीजों, एक मंजिल आई, एक मंजिल आई संग्राम में। मैदान से अबुल फजल का सलाम आया, मैदान से अबुल फजल का सलाम आया। हुसैन ने कदम आगे बढ़ाया, दोनों हाथ कमर पे रख मर्सिया पढ़ते हुए चले। अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास में बेसहारा हो गया, अब्बास में तना रह गया। और भाई भाई के सहारे आया, भाई ने भाई के सर को सालू नहीं दिया।
हमें कबूल फरमा। परवरदिगार हाज़िर मजलिस की जुमला हाजात शुरा को बता। परवरदिगार मरहूम के दराजात को बुलंद फरमा। अल्लाह नीर में जगह इनायत फरमा। उनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। उनके लवाज़िकीन और मुताल्लिकीन को सदे जमील लगा। परवरदिगार मुक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मिल्लत को मुत्तहिद रखा। मौमिलकत की हिफाजत फरमा। ज़हूरे हज़रत हुज्जत में तौजीह फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास। सैयद अज़म हसन ज़ैदी इब्न सैयद औज़ु बिल्लाहि और वहाँ से इसका जो सवाल 30 साल पहले सैयद अज़म हसन ज़ैदी इब्न सैयद महबूब हुसैन